And your last हेलो. examination for this particular course will be for हाँ. 35 marks. 35 marks. 2 વાગે રોજનો ટાઈમ 2 So વાગેનો total છે कितने પેલું. मार्क हुए? 35. હા, રોજ 2 વાગે જ મુકાય છે એટલે 2 વાગે જ Your તમારું પેપર comprehensive આવશે. examination, semester end examination, 15 30 mark તારીખ for સુધીમાં your આવશે. mid semester હા. examination, and 25 marks will be for ના ના your ના 30 તારીખ practical 5 work વાગ્યા સુધી, or 5 વાગે તો સ્કૂલ internal પતે હોતું પણ assessment. નથી. तो कितने मार्क हुए अन्नपूर्णा? 12 વાગ્યા સુધી જ હોય. 70? 75. ના ના 75. એવો કોઈ મેસેજ નથી, એ 75. મોટાભાગના માટે હશે, 75, sir. 9 થી 12 માટે સવારના ટાઈમ Okay. માટે આવો કોઈ મેસેજ નથી. So, as per the હા. prescribed norms for one credit, there are 25 marks. So, 25 multiplied by 3 is equal to 75 marks is allocated to this particular course. So, this is just clarification for the evaluation or assessment strategy which we have adopted for this course. ગમે છે Then, સગો બંડો કરી દે if we see the prepared practical work and different activities under various categories related to all the units which are there in this particular course, you have enough options and enough variety of scopes to show your inherent talent or skills. In fact, one can present or submit anything which is ready made available sometimes, but here we wish that whatever you prepare, you should prepare on your own. And I personally feel that you all have such kind of inbuilt capacities or inherent talents which you can manifest here by preparing this, by doing this practical work under various categories. Now, let us discuss all the activities, and simultaneously we will discuss some of the important aspects which are not verbally mentioned in that draft which I have posted on in your WhatsApp group. So let us see and try to understand, and simultaneously if there is any query, you can raise any question also, so that you can get better clarity that what exactly you have to do, what are the norms which are defined while giving this activity under practical work. So let us see this. यनपुन आप शेयर कर सकती हो वहां से? Are you able to share this PDF? नहीं, मोबाइल वाला नहीं चलेगा, इसमें दिखेगा नहीं, वो साइज बहुत कम छोटी है. नहीं, वो छोड़ो. अनम्यूट योरसेल्फ, यू अनम्यूट फर्स्ट. ओके सर, जस्ट अ सेकंड, मैं व्हाट्सएप ऐप खोल के इसमें ही कंप्यूटर में कर देती हूँ, जस्ट अ सेकंड. हाँ. PDF खोलना. यस यस सर, जस्ट अ सेकंड. हाँ. I will share it now.
Is it visible, sir? या थोड़ा जितना बड़ा हो सके करो. Okay, sir. हाँ. Okay. Now let us try to understand word by word that this is the collection of activities for your practical work under the course Drama and Art in Education. And there are 6 categories given. Under different 6 categories, there are different types of activities. And as it is mentioned under this instruction, you have to select only one activity from one category. It means from one category you cannot select more than one activity, and maximum 5 activities you have to carry out as a part of your practical work. Is that clear? टोटल 5 एक्टिविटी करनी है. एक कैटेगरी से एक एक्टिविटी का सिलेक्शन आपको करना है जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हो. सो एज पर योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी you should decide that which activity for which you can do your best. So you have enough choice, and according to your potential or competencies you should select the appropriate activity. So from 6 categories you have to select 5 activities. And one important thing is one has to choose only one activity from one category. And there are activities which can be done either individually or in pair. अगर मैं अकेला कोई एक्टिविटी करना चाहता हूं तो भी स्कोप है, या फिर किसी दूसरे के साथ मिलकर मैं करना चाहता हूं तो भी स्कोप है. So here अगर आपको लगता है कि मैं किसी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी अच्छे से कर सकता हूं और हम दो मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा बन सकता है. बिकॉज व्हेन वी डू सम वर्क टुगेदर वी कैन इंक्लूड डबल क्रिएटिविटी इन फैक्ट. एंड दैट्स व्हाई हियर फॉर आगे थोड़ा आगे बढ़ाओ, कैटेगरी 1 का राइटअप थोड़ा आगे बढ़ाओ. हाँ बस. यू कैन सी हियर फॉर कैटेगरी 1 which is entitled as drama, in which you can do this activity, one activity only, individually or in pair. The first activity is develop a script based on any lesson of your choice from any subject to perform a play or drama. Hello? Sir, your voice is not audible.
ओके, ठीक है अभी. Yes, sir. Now. Now second is develop a script for a street play focusing on any social issue for creating awareness. Now here you have to prepare a script for any street play based on any social issue. We know that there are variety of social issues related to different type of areas or discipline. As for example, social issues related to our day-to-day life. During this corona pandemic, we are facing many social issues. Like now we are unable to meet each other. We have stopped our social gatherings. So you can focus on any kind of social issue related to any aspect. Third is develop a script of Bhavai. Bhavai is a folk form of a drama. गुजराती रंगभूमि में ये भवाई एक नाटक का एक प्रकार है. And for that, for getting its conceptual understanding, you can see a YouTube video. For that, a link is also given. तो आपको ये पता चलेगा ये भवाई होता क्या है. And you, before doing any task, you should collect some information for its conceptual understanding. Then fourth is prepare a video of a reporter and interviewee discussing on any social issue. आप टीवी पर कभी कभी ऐसे इंटरव्यू देखते हो जिसमें एक इंटरव्यू लेने वाला है और एक सामने एक व्यक्ति बैठा है जो जिसका इंटरव्यू लिया जाता है. And on any social issue they are discussing. One is asking one by one questions and another person is giving its relevant answers. So for 3 to 5 minutes time duration, you can prepare a video of such an interview. ऐसे इंटरव्यू भी आप थोड़ा रेडीमेड इंटरव्यू आपको YouTube पर बहुत मिल जाएंगे. ऐसे इंटरव्यू ऑफ वेल नोन पर्सनालिटीज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इश्यूज. We have seen the different shows organized by Amir Khan under its series of Vande Mataram. क्या नाम था उसका? सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते. So such kind of interview you have to prepare a video. You can prepare, and you have to ensure that it should be very creative, imaginative, and original in nature, and based on a particular social issue, which can disseminate the wonderful thoughts for the viewers. Then fifth one is prepare a video of a play or drama using different stage crafts. अभी ये पूरे स्टेज पर कोई ड्रामा का प्ले होता है, उस प्रकार का एक ड्रामा आपको उसका वीडियो तैयार करना है. एंड दिस इज ओनली द सिंगल ग्रुप एक्टिविटी इन दिस कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज अंडर ऑल डिफरेंट कैटेगरीज, in which you can include 5 to 7 members and its time limit will be 10 minutes maximum time limit. तो यहाँ पे आप कोई एक वीडियो एक ड्रामा का या प्ले का ऐसा बनाओगे, कोई थीम जरूर नहीं है, कोई भी थीम ले सकते हो आप, बट यू शुड एंश्योर दैट इट शुड इंक्लूड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिसमें कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, साउंड हो, म्यूजिक हो. ऐसी कुछ चीजें आप अपने लेवल पे जो एक साथ मिल करके कर सकते हो तो ये करना है. और माइंड वेल, फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटीज यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन एक्टिविटी फ्रॉम दिस कैटेगरी. तो अगर आपको ये नहीं कर सकते हो तो ये आपके लिए ऑप्शन में निकल जाएगा. देन क्रिएट ए शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म फॉर डिसेमिनेटिंग वैल्यूएबल मैसेज और मैसेजेस ऑन वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, national integration, cleanliness and health and hygiene or any issues. सपोज कोरोना में भी अवेयरनेस कैसे लानी है, ऐसा भी एक पॉइंट लेकर भी एजुकेशनल फिल्म बना सकते हो. सो द चॉइसेस आर ओपन. यू कैन सिलेक्ट एनी थीम फॉर डिसेमिनेटिंग द वैल्यूएबल मैसेज. तो ये 3 से 5 मिनट की, इसमें यहाँ पे एक YouTube पर बताई गई एक फिल्म है जो है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से फिल्म को अच्छे से हम निर्माण कर सकते हैं.
In fact, it's a very professional and unique kind of creative work. But at our own level, even if we are not professional filmmaker, but at our level, we can initiate this type of work because we are interested. जिसमें हमें रुचि है वो हमारे लेवल पे हम कैसा भी काम करें, जरूर नहीं कि हम अच्छे फिल्म मेकर की तरह ही काम करें, लेकिन एक वर्क इनिशिएट करने से हमें उसके अलग अलग डायमेंशन का पता चलता है, उसमें हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है, उसके बारे में हमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं. सो सर आई हैव वन क्वेश्चन. ये जो शॉर्ट एजुकेशनल फिल्म है उसमें 3 या 4 लोग काम कर सकते हैं एक साथ में? ये एजुकेशनल फिल्म में आप कर तो सकते हैं, लेकिन ये इट इज कंसिडर्ड एज ए पेयर एक्टिविटी, तो ये सबमिशन 2 लोगों का ही होगा. आप किसी दूसरे को इन्वॉल्व कर लो, आपके घर में से 2 लड़के हैं लड़की है, कुछ इसको इन्वॉल्व कर लो. आप यू कैन इन्वॉल्व एज मैनी पीपल एज यू विश, देयर इज नो प्रॉब्लम. लेकिन ये फिल्म बनानी है, इसमें किरदार आप ज्यादा ले सकते हो, बट सिंस इट्स अ पेयर एक्टिविटी और इंडिविजुअल एक्टिविटी, सबमिशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द फॉर एन इंडिविजुअल और इन पेयर. तो आप फैसिलिटेट करने के लिए आप किसी को भी एनकरेज करके आप घर में से ही किसी व्यक्ति को ले लो, ताकि आपको बाहर से किसी को लेना ना पड़े. ओके सर, थैंक यू सर. है ना. फिर आगे 7th एक्टिविटी, थोड़ा आगे बढ़ाओ. चूज एनी इंटरेस्टिंग स्टोरी and develop your video on storytelling in any language of your choice. Time limit will be 5 to 10 minutes. And for understanding or reference, you can watch the video given here on YouTube. जिसमें एक इंटरनेशनल स्टोरी टेलर है दीपा किरण जिसका नाम है, उसका एक वीडियो है. उसके बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो just to understand the various dimensions included in storytelling technique that you can visualize with the help of this video, and you can try on your own. आप घर में से किसी को या पैर में काम करते हो तो एक वीडियोग्राफी करेगा, दूसरा जिसमें एक्सपर्टीज है वो स्टोरी टेलिंग टेक्निक को सीधा वो प्रेजेंट करेगा. सो इन दिस वे यू कैन हेल्प वन अनदर. ये पैर में रखने का थोड़ा उद्देश्य हमारा ये है कि in some cases you can facilitate each other to make your task more effective and more interesting. क्योंकि एक तो 2 लोगों के विचार उसमें जुड़ते हैं तो काम थोड़ा और रिफाइंड हो जाएगा, और एक दूसरे को थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हो. कहीं पे मैं प्रेजेंट करता हूं और दूसरा वीडियोग्राफी इफेक्टिवली करता है, फिर दोनों साथ में मिलके उसका किसी के पास एडिटिंग भी आप अच्छे से करवा सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जो अगर वीडियो किया है तो. So once you observe such kind of developed video on YouTube, you will definitely understand that what are the interesting dimensions you should include in your storytelling technique while preparing this video. And the last is develop your video on teaching of a small teaching point with the help of self-made finger puppets. There are different types of puppets, and for that you can get some information from the YouTube video for which we have mentioned the link here. उसमें कुछ बड़ी आसानी से आप बना सकते हो अपने लेवल पे. ऐसे अलग अलग प्रकार के ये puppets के बारे में बताया गया है. And then there are some videos also available on YouTube that how teaching can be done very effectively by using this finger puppet. ठीक है. अभी आगे थोड़ा आगे ले जाओ, अभी डांस वाले कैटेगरी में. Shift to the another category. Now this is again the category 2. अगर आपने ड्रामा में से किसी एक बात का आपने सिलेक्शन एक एक्टिविटी का कर लिया, now move to the another. Dance. Prepare a pictorial monograph on various folk dance of any one state of India. आप कोई एक स्टेट जहां पे आप बिलोंग करते हो वो भी ले सकते हो, या गुजरात भी ले सकते हो,
या राजस्थान ले सकते हो, यूपी ले सकते हो, कोई भी स्टेट, एंड वहां के जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, उसका एक पिक्टोरियल मोनोग्राफ बनाना है। और पिक्टोरियल मोनोग्राफ के लिए मैंने एक नोट लिखा है नीचे, बिकॉज ऑल दिस इनिशियल 3 एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रिपेयरिंग ए पिक्टोरियल मोनोग्राफ। और प्रिपेयरिंग ए पिक्टोरियल मोनोग्राफ, ये हटाओ बीच में से जरा। For pictorial monograph, use at least 8 to 10 A4 size plain papers along with an attractive title page। आपको एक अच्छा टाइटल पेज बनाना है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ करके उसमें बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स और इमेजेस भी आप डालोगे, उसकी ब्रीफ बड़े फॉन्ट में ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड डालोगे। जैसे अगर मैं गुजरात के गरबा, इट्स अ फोक डांस ऑफ गुजरात, गरबा के बारे में उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स लगाता हूँ, फिर उसके नीचे मैं छोटे से 1-2-4 लाइन में लिखता हूँ कि ये संस्कृति कब शुरू हुई और उसमें कौन कौन से अलग स्टाइल होते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ राइटअप, नॉट डिटेल राइटअप बेस्ड ऑन मोर एंड मोर पैराग्राफ्स। सो ब्रीफ राइटअप्स फॉर डिफरेंट फोक डांस और डिफरेंट स्टाइल्स विच आर इंक्लूडेड इन द मोनोग्राफ। सो ये 8 से 10 पेज का आपका एक पिक्टोरियल मोनोग्राफ होगा। पिक्टोरियल का मतलब है जिसमें पिक्चर्स की भरमार होगी, अलग अलग पिक्चर्स, ताकि वो पिक्चर देख के भी लर्निंग हो सकता है किसी का भी। एंड अलॉन्ग विद दैट पिक्चर, बिलो दैट पिक्चर और अलॉन्ग विद दैट पिक्चर, some relevant information should be provided. It should be typed in appropriate size of the font, so that it can be read by the different other persons. In the same way, another activity is also or similar kind of the activity for various classical dance forms of India. उसका भी एक पिक्टोरियल मोनोग्राफ आप बना सकते हो। वेरियस डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है ना, ऐसे 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 अलग अलग डांस फॉर्म है। ये क्लासिकल वर्ड मैंने ऐड किया है, उसका मतलब क्या हुआ, जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी बात है और कोई नहीं। Third is prepare a pictorial monograph on various contemporary dance forms of India, like ballet, jazz, hip hop, etc. ये अभी आज के कल्चर में बहुत प्रचलित है। आपके टीवी में भी ऐसे रेगुलरली ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे ऐसे डांस कर सकते हैं। तो ये डांस फॉर्म क्या है उसके रिलेटेड भी आप कुछ ये पिक्टोरियल मोनोग्राफ बना सकते हो। एंड ए कॉमन इंफॉर्मेशन इज नोट इज गिवन फॉर फर्स्ट 3 एक्टिविटी। आगे बढ़ाओ थोड़ा। हेलो सर। यस सर, ये जो पिक्टोरियल मोनोग्राफ है उसे हम कंप्यूटर में नहीं बना सकते? ये कंप्यूटर में बना सकते हो, और किसी को ड्राइंग करना है तो ड्राइंग भी कर सकते हो। किसी को फोटोग्राफ को अच्छे से निकाल के उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइनल फॉर्म में निकालना है कंप्यूटराइज्ड ग्राफ, देन आल्सो इट इज पॉसिबल, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सर, अगर हम कंप्यूटर में वर्ड में बनाएंगे तो उसमें A4 पेज ऐसा कंपल्शन होगा? हाँ, A4 साइज का इसलिए कि उसको आप अच्छी तरह से स्टिच करके बाइंडिंग करके एक मोनोग्राफ जैसा एक शेप दे सको फॉर्मेट में। बट सर, अभी तो हमें आपको ऑनलाइन ही सेंड करना रहेगा ना? तो सॉफ्ट कॉपी आप भेज सकते हो ना उसका। ओके, जब वो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तब? नहीं, हमने बोल दिया कि चलो ये डेडलाइन है, तो उससे पहले आप आपकी पूरी मोनोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी हमें मेल कर सकते हो। ओके सर, ओके। और अगर कोई इधर रहता है या देकर जाना चाहता है तो देकर देने के लिए भी आ सकता है। इट इज नॉट कंपल्सन, बट इफ यू आर लुकिंग टू द सिचुएशन, व्हाटएवर इज फिजिबल फॉर यू, दैट यू कैन डू इट। ओके सर, ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? ऐसा बीच बीच में क्लैरिफाई करते रहेगा, क्योंकि डाउट अभी ये सिचुएशन के चलते कहीं डाउट हमने भी नहीं सोचा है और आपने सोच लिया, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट 4th एक्टिविटी इज अंडर दिस इज डेवलप ए कैलेंडर चार्ट ऑन
वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कैलेंडर चार्ट का मतलब होता है कैलेंडर ही होता है, वो कैलेंडर की साइज क्या होती है हम जानते हैं। आपने कैलेंडर तो देखा है ना, कैलेंडर भी छोटे छोटे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े कैलेंडर लेना है जिसमें कैलेंडर की साइज मिनिमम A3 साइज का पेज हो, ऐसा मान लो A3 साइज, नॉट A4। A3 से बड़ा हो तो अच्छी बात है, वो क्या कि वो बड़े क्लासरूम में अगर आपको दिखाना है जहां देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड यू वांट टू शो द पिक्चर्स थ्रू कैलेंडर चार्ट, सो इट शुड बी विजिबल in the entire class, at least the last bencher also can see it very clearly। तो उस प्रकार से कैलेंडर चार्ट, इसमें एटलीस्ट 5 कैलेंडर साइज पेपर्स शुड बी यूज्ड, and on that calendar chart you should keep various pictures of musical instruments and their names and their region also sometime, because there are some musical instruments they may be available only in specific region or specific country। सो म्यूजिकल चार्ट का एक 5 कैलेंडर से को इंक्लूड करके एक चार्ट, ताकि उसको आप उल्टा करके एक के बाद एक दिखा सको, एक कैलेंडर की तरह ही। ठीक है। 5th एक्टिविटीज, डेवलप योर ओन वीडियो on performing any classical dance form of your choice with sound and music, time 3 to 5 minutes। आप में से कोई अच्छा क्लासिकल डांस भी कर सकता होगा, ये मुझे यकीन है, कोई किसी ने आरंगी नृत्य किया होगा, तो अपना खुद का एक वीडियो ऐसा बना के आप शेयर कर सकते हो। और ये इसमें जिस प्रकार की वीडियो की बात आती है उसको आपको सबमिट नहीं करना है, आपको सीधा वर्चुअल मोड में हम जैसा शेड्यूल बनाएंगे उस दिन आपका प्रेजेंटेशन होगा, एंड each and everyone will be able to see it, even our teachers also will be involved, our dean also will be involved, and they will observe that how creatively you have performed the things। तो ये वैसे यूजुअली हम इसके एग्जीबिशन होता था, और ये हमारे रेगुलर CCA क्लास में ये एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन होता था पहले ऑफलाइन मोड में, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मोड पे ये सब कुछ होगा। और इसके लिए अगर आप लाइव परफॉर्म कर सकते हो तो ऐसी अरेंजमेंट करो, या नहीं कर सकते हो तो उसका वीडियो बना के पूरी सिचुएशन को आप प्रेजेंट करो थ्रू इन वीडियो मोड। तो हियर यू कैन यूज 2 डिफरेंट ऑप्शंस, आइदर यू कैन गो फॉर योर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें कोई साथ में म्यूजिक साइड बैकग्राउंड में बज रहा है और आप डांस, क्लासिकल डांस परफॉर्म कर रहे हो, या फिर to maintain its effectiveness you can prepare your video and then afterwards it will be presented during the allotted time period or slot for your presentation। ठीक है। now let us move to category 3। थोड़ा आगे बढ़ाओ। हाँ बोलो। तो कैलेंडर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसके बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा ना? हाँ, ब्रीफ में लिखो, बिल्कुल अननोन है। जैसे हारमोनियम है तो हारमोनियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, ज्यादातर लोगों ने देखा है। सर उसमें मतलब जो प्रॉपर कैलेंडर होता है, डेट्स एंड ऑल, वो सब मेंशन नहीं करना ना, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कैलेंडर जैसा है, दिखता है कैलेंडर जैसा, वो कैलेंडर का उसका शेप है, कैलेंडर फॉर्म में है, उसको ऊपर से आप स्टिच करके 1 by 1 आप ऊपर से घुमा के दूसरा हॉरिजॉन्टल। हाँ, उसकी लेंथ बड़ी होगी और विड्थ है ना कंपेयर टू लेंथ छोटी होगी, छोटे। ओके, है ना, जैसे हमारा ये लैपटॉप का स्क्रीन होता है, डेस्कटॉप का होता है, उस प्रकार का ये हो। लेकिन ऐसे हम वर्टिकल उसको हैंग कर सकते हैं, उसके ऊपर ऐसा लगाने के लिए भी आप अरेंजमेंट कर दो, सो इट विल लुक लाइक एग्जैक्टली ए कैलेंडर।
सर आई वन क्वेश्चन, ये जो कैलेंडर बना रहे हैं उनकी फोटो क्लिक करके ही मेल में सेंड करनी होगी या इसका भी वीडियो हम बना सकते हैं? हम टर्न बाय टर्न पेजेस आप करें तो उसका प्रेजेंटेशन का स्लॉट दिया जाएगा, उस वक्त आप कैलेंडर चार्ट के जरिए आप 2-4-5 मिनट के लिए आप समझाओगे कि ये बनाया है मैंने। ओके सर, दैट कैन बी पॉसिबल, यस सर। है ना? We will the modality also we will think simultaneously. इसमें क्या हम कर सकते हैं? What will तो be the- प्रेजेंटेशन वाला ज्यादा सही रहेगा बिकॉज हम खुद उसमें describe कर पाएंगे। यस सर। Okay. सर इंस्ट्रूमेंट हमें अपने आप से दौड़ने हैं कि ऑनलाइन डायरेक्ट ले लें? हेलो, Category 3. It is related to drawing and painting. Take any one object. सर किसी ने डाउट पूछा बीच में, कौन बोल रहा था? हाँ पूछ लो एक बार सर आप। सोना, कैलेंडर चार्ट में इंस्ट्रूमेंट हमें ऑनलाइन डायरेक्ट लेने हैं कि अपने आप ड्रॉ करने हैं? जैसा भी आप चाहो. It looks very क्रिएटिव ओके, और जो अच्छे से बढ़िया दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने ये छोटा सा हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर काम किया है. आप यू आर ऑब्जर्विंग अवर वर्क नाउ. यस, हाँ हम ये ऐसे बोल के भी बता सकते हैं, और हमने जितना हो सके उतना कलरफुल किया है, उसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डाली है, उसमें यूट्यूब वीडियो का भी आपको जिक्र किया है. सो द वे इट कैन बिकम मोर एक्सप्लेनेटरी वी हैव डन. So here our simultaneously one important concern is to draw out your best abilities which you can manifest. यस सर। तो यहाँ पे आप अपनी जो बेस्ट एबिलिटीज है, टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो बाहर लाने का प्रयास करें. और किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ आप इस तरह से प्रेजेंट करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये पता लगे कि हाँ ये काम इस तरह से भी बढ़िया हो सकता है ना. ये सब्जेक्ट पूरा बीएड में लाने का मतलब ही यही है कि आपकी एक इंसाइट है वो डेवलप हो, क्रिएटिविटी वो डेवलप हो. तो डोंट डू एनी वर्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. उसमें आप अपनी पूरी क्षमता है वो डाल दीजिए. यस सर। पूरे कौशल्य है आपके वो उसमें आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए, डाल दीजिए, यूज कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई ये काम है कितना बढ़िया हो सकता है. कोई भी छोटा सा काम कितना आर्टिकुलेटेड वे में हो सकता है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको. And that's why if you have seen in the beginning we have mentioned that you can choose any activity apart from the listed here. क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा और हम 4 टीचर्स के अलावा आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाईली क्रिएटिव हैं, और हम आपकी ये क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं. इसलिए हमने ये एक सेंटेंस में आपको पूरी छूट दे रखी है कि ये इसमें से ही आप सिलेक्ट करो, ऐसा जरूर नहीं है. अगर आपको लगता है कि आई कैन डू समथिंग वेरी बेस्ट एंड वेरी यूनिक विच इवन नॉट द टीचर्स हैव थॉट सो फार, तो आप हमसे बात कीजिए और बताइए सर मैं ये करना चाहती हूँ और हम दोनों मिलकर ये करना चाहते हैं. एंड इफ इट इज अप्रोप्रिएट फॉर एनी कैटेगरी we will give you permission immediately and you can do any kind of innovative work and that will be an inspiration for all of us. Okay? चलिए आगे. तो ये पहले एक्टिविटी टेक एनी ऑब्जेक्ट. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने सराउंडिंग में से ले सकते हो. जैसे पानी पीने का कोई घड़ा है जिसको अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मम्मी ने निकाल दिया, उसको पड़ा है कहीं कोने में टेरेस पर. कोई फोटो फ्रेम है जो अभी यूजलेस है, कोई प्लास्टिक का बॉटल है, कोई सिंग तेल का कार्बो है, कोई बॉक्स है. ऐसी कोई भी चीज आप ले लो जो कि जिसको देख कर आपको लगता है यू कैन विजुअलाइज दैट समथिंग कैन बी क्रिएटिव डन विद द हेल्प ऑफ दिस नो कॉस्ट ऑब्जेक्ट. And paint it with any art of painting. यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग आर्ट का जिक्र किया है हमने. मधुबनी आर्ट, वर्ली आर्ट, गोंड आर्ट,
पट्टचित्र, सौरा, ये सब अलग अलग चित्रकलाएं हैं, अलग अलग प्रांत की, अलग अलग स्टेट की। उसके बारे में आपको गूगल सर्च से आपको बहुत सारे अलग अलग इमेजेस भी, रेडीमेड इमेजेस मिल जाएंगे। इफ यू राइट डाउन इमेजेस ऑन मधुबनी पेंट आर्ट, इमेजेस ऑन वर्ली आर्ट, फिर उसमें से आपको जो बढ़िया लगता है उसका कोई छोटा सा स्लॉट लेकर आप इसका पेंटिंग कीजिए। भीत चित्र का भी हो सकता है ना सर इसमें? हाँ आदिवासी में भीत चित्र जो आते हैं। हाँ, कोई भी। ये एग्जाम्पल दिए हैं, एटसेट्रा लिखा मतलब आप किसी और कला का भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे अनयूज्ड लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आपको कलात्मक बना देना है और कुछ नहीं है। इसमें कलर भी आपको ऐसे वाटर बेस्ड कलर या एक्रेलिक पेंट आप यूज कर सकते हो जो कि परमानेंट रहे, उसके ऊपर ब्रश का उपयोग करके आर्टिस्टिकली बनाओगे। तो दूसरा है डिजाइन एनी वन फॉर्म ऑफ पेंटिंग लाइक कैनवास, कॉटन फैब्रिक क्लॉथ, सैंड पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग एटसेट्रा। उसकी साइज मैंने लिखी है 1 फुट बाय 1.5 फीट। सो एक रेक्टेंगल शेप में इस साइज का आपको लेना है, कैनवास या क्लॉथ या सैंड पेंटिंग जिसके ऊपर कुछ हार्डबोर्ड पर बनाते हो, जो भी ले रहे हो। ग्लास पेंटिंग ग्लास पर करते हो, उस टाइप का ग्लास लेना है। तो ग्लास पेंटिंग करना है तो उसके लिए भी कलर भी अलग आते हैं ग्लास पेंटिंग के। और पेंटिंग में अलग कुछ, इससे भी कुछ अलग आप कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। इसमें वॉल पेंटिंग कर सकते हैं सर? वॉल पेंटिंग कर सकते हैं? वॉल पेंटिंग आप कहाँ करोगे? ये हमारे हम यूजुअली करवाते थे, हम पहले हमारी फैकल्टी में ही किसी वॉल पर हम स्पेस एलोकेट करके करवाते थे, लेकिन ये प्रैक्टिकली अभी आप अपने लेवल पे घर पे करोगे तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना मुश्किल है। इसलिए ये छोटा पेंटिंग बनाओ। ये कंपेयर टू वॉल पेंटिंग you can show your skill with the help of this kind of drawing and painting. Okay sir. ठीक है? Because here in this situation our intention is simply to know your. सर एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने कैनवास पेंटिंग या कुछ भी पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग या कुछ भी बनाया तो क्या हमें सबमिट करना पड़ेगा या फिर हम नहीं, अभी करना है, आपको दिखाना है। आपको आप जो आप कुछ इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो कुछ दिखाने के लिए, कुछ एविडेंसेस जब आप बना रहे हो उसका एक छोटा सा पीपीटी बना के कि while preparing this what you have done and at the time of the given slot for presentation or demonstration, ये हम रखेंगे ऐसा टाइम स्लॉट। ये हम साइमल्टेनियसली उसको भी करते जाएंगे क्योंकि इट इज एन इंटरनल असेसमेंट। तो जैसे ही 2-4-5 लोगों को हो गया, हम हमारे रेगुलर रूटीन क्लासेस में हम उसका सेशन रख देंगे कि टुडे दिस 5 पेयर्स विल प्रेजेंट देयर ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो उनका 5 लोगों का असेसमेंट उसी दिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि चलो 1 महीने के बाद हम सबका कलेक्ट करें और सबका दें, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। ओके सर। So as 5 to 10 persons will be ready, we will arrange the session for the demonstration of any activity or under the any category as per the feasibility. ये सब साइमल्टेनियस चलता जाएगा। डेडलाइन तो होगी, क्योंकि डेडलाइन से पहले सबका ये डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन या सॉफ्ट कॉपी का सबमिशन हो जाना बहुत जरूरी है, so that after that we can submit your mark sheet through online in examination section. सर Yes, please. सर ये ऑब्जेक्ट वाला है जो फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें सर हमारे जो चीज होगी उसके ऊपर हमें ये आर्ट पेंट करना रहेगा। ऊपर करना है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट। हाँ, जैसे आपके घर में कोई ऐसा पानी का बोतल है जो अभी कोई यूज नहीं करता है, आप लाए थे तो बहुत ज्यादा कीमत थी, अभी वो किसी न किसी तरह या तो उसके ऊपर का ढक्कन है वो कहीं खो गया है, तो आपके पास बोतल है सिर्फ। या आपने देखा होगा जहाँ आर्ट वर्क होता है ना, वहाँ ये आर्ट वर्क किसी की चीज पर होते हो, शराब की एक आर्टिस्टिक बोतल है उसके ऊपर भी करते लोग,
उसमें बहुत सारे अलग अलग शेप की बॉटल्स आती है। यस सर, सर किसने तो आप कहीं से ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा उसके मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। You should ensure that for that you are not supposed to pay a single rupee. वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहीं से भी मिलता है, किसी के घर से मिलता है, उसके ऊपर आप ये आर्टिस्टिक वर्क करो। आगे चलते हैं। थर्ड एक्टिविटी, मधुबनी पेंटिंग करना है। मधुबनी या वर्ली आर्ट वर्क का पेंटिंग करना है एंड साइज ऑफ द ड्राइंग पेपर विल बी A3। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक पेंटिंग बनाना है, दोनों में से किसी एक आर्ट पर आधारित। फोर्थ इज डेवलप ए पिक्चर बेस्ड स्टोरी विद द हेल्प ऑफ ए सीरीज ऑफ 7 to 10 कलरफुल पिक्चर्स ऑन ए बिग चार्ट पेपर। एक फुल साइज का चार्ट पेपर जितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसमें 7 से 10 चित्र का समावेश करना है आपको। एंड इन ऑल दिस 7 to 10 कलरफुल पिक्चर्स योर स्टोरी विल बी ग्रेजुअली डेवलप्ड। चित्र नंबर 1 देखने से मुझे पता चलता है कि इसमें एक कछुआ है और एक ये रैबिट है। दूसरे में वो रेस लगाते हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तीसरे चित्र में वो कहीं पे जाके वो रैबिट है, वो आराम करने के लिए बैठ जाता है किसी तालाब के किनारे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट सीरीज ऑफ पिक्चर्स you can use few words and explain your story very easily. So it will be the facilitating teaching aid or classroom teaching learning process. And for the painting, use some water-based colors. That may be for permanent. तो उसके लिए एक्रेलिक का भी एक ऐसा कलर्स आते हैं, ट्यूब कलर आते हैं, जो भी यूज करो आप, ताकि उसमें ये ऑयल पेस्टल को यूज करना अच्छा नहीं है, वो ड्यूरेबिलिटी उसकी नहीं होती, अच्छा कभी नहीं भी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कैटेगरी 4 म्यूजिक एंड वोकल, थोड़ा आगे ले जाओ। फर्स्ट एक्टिविटी अंडर दिस कैटेगरी इज डेवलप एन ऑडियो CD based on 3 self-composed poems sung by you in any language. किसी 3 पोएम, कभी कभी पोएम के कुछ प्रचलित राग हम जानते हैं, वही राग में वो सालों से गाई जाती है, लेकिन आप कुछ नया उसका राग बना सकते हो, नया कंपोजिशन डेवलप कर सकते हो अपने तरीके से। जिसको गाने में, संगीत में रुचि है, ये लोग ये काम कर सकते हैं। कुछ नए स्वरांकन करना है इसका। सर इसमें हम अपनी पोएम गा सकते हैं? हाँ, अपनी मतलब स्कूल टेक्स्ट बुक से लेनी, अपनी बची हुई नहीं, स्कूल टेक्स्ट बुक, बिकॉज दिस विल बी द टूल फॉर द लर्नर्स। या क्लासरूम में फिर आप उसको सुना के कहोगे कि ये काव्य इस तरह से भी गाया जाता है, ये नया तरीका है। किसी भी लैंग्वेज में ना? हाँ, किसी भी लैंग्वेज, और मोस्टली यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, देन गुजराती, देन संस्कृत, school subjects mainly. Then second is develop poetic version for any well-known story. किसी भी छोटी छोटी स्टोरी बहुत होती है, रामायण पर आधारित, महाभारत पर आधारित, पंचतंत्र या तेनालीरामन या अकबर बीरबल, कोई भी हो, उसके आधारित वो स्टोरी को आपको एक काव्य में परिवर्तित करना है। और ये तो काव्य में तब्दील हो जाता है, तो वो एक राइटिंग जैसा है। आप उसको बोलकर भी, उसका वीडियो बना के भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, या आप खुद डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो उसे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। तीसरी एक्टिविटी है ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर स्किल ऑफ प्लेइंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, जिस जो आप बजा सकते हो अच्छी तरह से, उसका पहली बार प्रयोग नहीं करना है हमारे सामने। यू शुड बी एन आर्टिस्ट, ये इंश्योर करना। सर टाइमिंग क्या होगा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे तो उसका टाइमिंग क्या होगा?
लास्ट में लिखा है 3 to 5 मिनट्स वर्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो 2-3 मिनट में आप अच्छे से अच्छा आप जिसमें आप बजा सकते हो, ये एक्टिविटी आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है। और सर जो बजा रहा है क्लासिकल होना चाहिए, राग होना चाहिए, या म्यूजिक मतलब बॉलीवुड या किसी फिल्म का सॉन्ग होना चाहिए? अच्छा है, अच्छा है। मतलब आपको ये सोचना है कि सुनने वालों को अच्छा लगना चाहिए। जैसे जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं ना, जाकिर हुसैन, तो वो पहले बोलेंगे कि अभी मैं ट्रेन कैसे चलती है उसका आवाज तबले से निकालता हूँ। तो आप उसको जो तबला बजाएगा तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि हाँ ये ट्रेन का आवाज आ रहा है। अच्छा। तो फिर बोलेगा अभी मैं जब घोड़े दौड़ते हैं तो घोड़े की जो दौड़ने की आवाज आती है उसके पैरों की, वो मैं बजा के दिखाता हूँ, तो वो बजा के दिखाएगा। सर अगर कोई राग प्रेजेंट कर रहा है और सामने वाले को राग की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो फिर राग का कोई मीनिंग नहीं होगा। देखो राग का अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन गरबा में बहुत सारे लोग तबला बजाते हैं, उसको राग का कोई नॉलेज नहीं है, तो उसको गरबा में कैसे बजाना वही नॉलेज है। That is also okay. Okay, sir. But you should manifest your skill of playing that instrument skillfully. That's it. फिर आगे है सर इसका तो वीडियो नहीं देना पड़ेगा ना, डायरेक्टली लाइव ही होगा ना? लाइव ही करो, या लाइव करना मुश्किल हो आपको, लिए अरेंजमेंट सब करना मुश्किल लगता है तो गो फॉर वीडियो, दैट्स नो प्रॉब्लम। ऑप्शन इज ओके सर, ओके सर। फिर है ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर वोकल सिंगिंग आर्ट along with साउंड ट्रैक इज मस्ट। बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक भी साथ में बजना चाहिए, और साउंड और म्यूजिक के साथ आप कोई गाना गा रहे हो। इट मे बी पैट्रियोटिक सॉन्ग, इट मे बी भजन, इट मे बी मोटिवेशनल सॉन्ग, इट मे बी फोक सॉन्ग, व्हाटएवर इट मे बी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसमें भी हम वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वीडियो बना के? हाँ कर सकते हैं। ओके सर। है ना, लेकिन इसमें साउंड ट्रैक इज मस्ट, ये मैंने बताया है कि साउंड साथ गाना है। ओके सर। Now here note is any of your live demonstration or maybe video will be presented virtually for time duration 3 to 5 minutes. आगे रिपोर्ट राइटिंग, आगे बढ़ाओ। सर एक डाउट है, बोलो। तो ये वोकल जो आप बोल रहे हो साउंड ट्रैक वाला, लाइक कैरियोके में होता है? हाँ कराओके से भी हो सकता है। यूट्यूब पर भी रेडीमेड कराओके साउंड ट्रैक मिलते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे अवेलेबल है। और इंशाल्लाह में भी मिलते हैं। हाँ मतलब कहाँ से लाना है वो आपको सोचना है, बिकॉज यू हैव टू डू दिस वेरी स्किलफुली, दैट्स व्हाई फ्रॉम वेयर द थिंग्स विल बी अवेलेबल, ये सोचना भी इसका एक हिस्सा है। फिर उसको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन हो सके उस प्रकार से कैसे करना, दैट इज ऑल्सो स्किल। फिर कैटेगरी 5th रिपोर्ट राइटिंग, इसमें केवल रिपोर्ट लिखना है। किसका रिपोर्ट? योर विजिट टू द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनी स्कूल ऑफ म्यूजिक इन योर सिटी और टाउन एंड प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट on its various departments and functioning, along with some pictures and images as evidences of your visit. तो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में पिक्चर भी डालने हैं रिपोर्ट में, जो दर्शाते हैं कि आप खुद वहाँ पे गए थे और ये सब फोटोग्राफ्स वहाँ के हैं, और किसी टीचर्स के, किसी स्टूडेंट के साथ या जो भी कुछ अवेलेबल है उसके साथ बातचीत करते हुए, या बिल्डिंग के, या वो स्पेसिफिक प्लेस है। तो एक रिटर्न रिपोर्ट है जिसकी सॉफ्ट कॉपी आप हमें बाद में आप मेल के जरिए भेज सकते हो। दूसरा ऐसा रिपोर्ट राइटिंग का सब्जेक्ट है विजिट द फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स इन योर सिटी। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है, उसमें बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके बहुत अलग अलग वर्कशॉप के ऐसे रिसोर्स रूम है। उसका कैंपस भी बनाया गया है कि आपको लगे कि हाँ ये फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है। तो उसका भी एक, उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप ये रिपोर्ट, अगर आपको लिखना नहीं है तो आप उसका एक वीडियो बेस्ड रिपोर्ट भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन इनोवेटिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग रिपोर्ट। जैसे किसी की डॉक्यूमेंट्री हम देखते हैं तो आपने पूरा जहाँ का प्लेस है वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया पूरा,
और साथ में आपका आवाज डाल दिया एंड इट विल बिकम ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म and based on the complete report of the visited institute. That is also the presentation of report. Last activity में जाते हैं अभी कैटेगरी 6 में क्रिएटिव वर्क। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है डेवलप ए क्रिएटिव डिजाइन ऑफ CD और DVD कवर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए आप किसी भी एक थीम पसंद कीजिए, जैसे कोई आप गरबा की कैसेट CD निकाल रहे हो, आपका खुद का एक स्टूडियो है, आपका स्टूडियो है, ये कौन सा वो सिंगर है गरबा सिंगर पुरोहित, अतुल पुरोहित। तो आप कोई अतुल पुरोहित की कोई वीडियो CD आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका एक CD कवर बनाइए। CD कवर में आप गरबा का ग्राउंड का पिक्चर डाल सकते हो, अतुल पुरोहित का पिक्चर डाल सकते हो, गरबा का जो CD का नाम भी डाल सकते हो। उसमें कुछ इस प्रकार की क्रिएटिव थॉट्स को आपको पिक्चराइज करना है और उसको ब्रीफ राइटअप, पीछे की साइड में ब्रीफ राइटअप लिखना है उसका, ये किसके बारे में है, ये वीडियो CD और DVD किसके बारे में है। तो ये यूनाइटेड वे के गरबा है, उसके गरबा में जो प्रचलित गरबा है उसके ऊपर आधारित ये अतुल पुरोहित के आवाज में गाए गए सब इसमें गरबा है। तो उसकी कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन पीछे आएगी, आगे उसका कलरफुल ऐसा इट्स अ कवर, सो 2 साइड कवर होगा, फोल्डेड कवर, इट्स शेप इज ऑब्वियसली स्क्वायर, उसका अच्छा बॉर्डर बनाए। तो क्या किस तरह से आप उसको आर्टिकुलेट कर सकते हो, कलरफुल बना सकते हो, उसमें इंफॉर्मेशन को पिक्चराइज कर सकते हो। क्योंकि हम जब CD खरीदते हैं तो हम उसका कवर देख के खरीदते हैं, अंदर क्या है वो पहले सुनते ही नहीं, देखते नहीं है। सो वी शुड नो दैट वंस द कवर इज अट्रैक्टिव, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू परचेज इट, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइनिंग। दूसरा है प्रिपेयर any useful, productive and decorative model or object by using some waste materials. तो वेस्ट में से बेस्ट बनाना है, कुछ भी चीज इधर उधर से 2, 4, 5 चीज जितनी भी कॉम्बिनेशन करना है कर सकते हो। साइंस वाले हैं तो कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट उसके जरिए बना सकते हो एक्सपेरिमेंट के लिए। जैसे कुछ पुरानी बोतल फेंक दी है किसी ने तो उसमें से वर्षाद मापक यंत्र बना सकते हैं हम, टेम्परेचर को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट दिखाने का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के टूल्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, कुछ मैथमेटिकल टूल्स बना सकते हो। बट द थिंग इज you should use the waste things which are available in your surroundings or at your home. तीसरा है डेवलप ए डिजाइन और पिक्चर बेस्ड ऑन क्रिएटिव कोलाज आर्ट वर्क। कोलाज वर्क होते हैं जिसमें जैसे कलरफुल अलग अलग पेपर्स के टुकड़े आप चिपका के कुछ क्रिएटिव डिजाइन डेवलप करते हो, कोलाज वर्क होता है। इसमें जो भी टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स है उसकी इंफॉर्मेशन आप खुद कलेक्ट कीजिए गूगल सर्च में जाके या किसी लिटरेचर से। ये कोलाज आर्ट वर्क क्या होता है, ये मधुबनी आर्ट क्या होती है, ये वर्ली आर्ट कैसी होती है, उसका कहाँ ये डेवलप हुई, उसके चित्र की शैली किस प्रकार की होती है, उसके मेजर फीचर्स क्या होते हैं। दैट यू हैव टू स्टडी एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टू डू दैट वर्क। Fourth is develop a picture by using different leaves, grains, species, etc. बहुत सारी चीजों में, जैसे मैंने कभी कभी देखा है कि गणेशोत्सव होता है हमारे सिटी में तो उसमें ड्राई फ्रूट का वो ऊपर लगा देते हैं, पूरा ड्राई फ्रूट से वो बनाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं ड्राई फ्रूट से बना हुआ गणेश की प्रतिमा। तो पब्लिक तुरंत पड़ती है वो देखने के लिए, इसमें कैसे बादाम और काजू और पिस्ता वगैरह यूज किया है। Here you can use some grains, rice, wheat, अलग अलग छोटी छोटी जो घर में हम चीज यूज करते हैं उसको चिपका के आप कोई पिक्चर डेवलप कीजिए। या अलग अलग प्रकार के नेचर में बहुत सारे पत्ते मिलते हैं, हरे पत्ते,
वो पत्ते का भी ऐसा कॉम्बिनेशन करके स्टिक ड्राइंग क्रिएट करें। सही, हम एक पेज बोलिए। पे करना रहेगा। हाँ फिर से बोलो बेटा। सर ये हमें एक चार्ट पेपर पे बनाना रहेगा। हाँ, चार्ट पेपर, ये साइज लिखी है मैंने ब्रैकेट में। हेलो, 1 फुट बाय 1.5 फुट का जो एक रेक्टेंगल बनेगा उसके साइज के चार्ट पेपर पर या हार्ड बोर्ड पर, जिसके ऊपर मतलब ये रहेगा तो आपके पास ही आपको बनाते हुए कुछ उसके स्नैप लेने हैं कि व्हेन यू आर डेवलपिंग दीज आर द वेरियस स्नैप्स जस्ट फॉर एविडेंस एंड एट लास्ट यू शुड शो एंड एक्सप्लेन दैट व्हाट यू हैव मेड। किस किस चीजों का इसमें इस्तेमाल किया। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चित्र देखने के बाद देखने वालों को ये पता नहीं चलता कि इसमें ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया है। जैसे अलग अलग फ्लावर्स की पंखुड़ियां है, उसके आधार पे हम रंगोली बनाते हैं लोग, तो यू कैन डेवलप सच काइंड ऑफ रंगोली ऑफ द flowers. Just this is the indicative items. You can apply your own creativity and thoughts to do something else also. There is no problem. It is very open. तो यहाँ पे 6 कैटेगरी के सब मैंने एक्टिविटीज को आपको डिस्कस किया, आपको ओरिएंट किया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और बिफोर दैट लेट मी गिव द डेडलाइन ऑल्सो। डेडलाइन 21 अप्रैल, पूरा 1 महीना है आपके पास। लेकिन 1 महीने का मतलब ये नहीं कि आप 21 तारीख को सबमिट करोगे। 21 तारीख को हम मार्कशीट सबमिट करेंगे, इसका मतलब ये है। एंड इसके पहले सबका हाँ बोलो सर। रंगोली कितनी बड़ी बनानी होगी? इसी साइज में, साइज तो दिया है। जहाँ पे साइज की जरूरत है हमने पैकेट में साइज लिखा है उसका। और इसका आप ध्यान से, रंगोली हम पत्थर पे बनाए या फिर चार्ट पेपर पे? वो इसके ऊपर रंगोली बनानी है तो इसको इसके ऊपर चिपका दो ना आप फेविकॉल से। सर बिकॉज ऑफ कोरोना अभी तो सब स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो रिपोर्ट राइटिंग हाउ इज इट पॉसिबल सर? नहीं, स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक तो मना किया है कि नहीं जाने देंगे या नहीं अलाउ होगा। नहीं, तो आप अगर जाना चाहते हो तो ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि उधर जाने के बाद ये पॉसिबल नहीं है तो यू कैन चूज एनी अदर एक्टिविटी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके है ना? ये हमने इसलिए हेलो सर। जैसे आप यहाँ हमारे फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाओगे तो कोई ना नहीं बोलेगा सर, बट हम बड़ौदा के नहीं है ना। हाँ, तो बड़ौदा के नहीं है तो आपके नियर बाय कोई है और जा सकते हो तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। सर हम जहाँ रहते हैं आसपास भी कोई ऐसे कॉलेज नहीं है परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स। तो यू कैन स्किप दिस एक्टिविटी, देयर इज नो प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो इंटरव्यू और रिपोर्टर वाला पॉइंट एक्टिविटी थी सर, उसमें हम लोगों को एक्ट करना पड़ेगा किसी के बिहाफ पे, या फिर हमें हमारे ही क्वेश्चन अपने आप और इंटरव्यू ऐसे पैरअप होके करना रहेगा? पैरअप होके आप ये कर सकते हो, एक सेट जैसा बना के उसका एक वीडियोग्राफ करके आप बना दो पूरा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करो। हाँ सर वो ठीक है, बट मैं ये पूछ रही थी कि हमें किसी के बिहाफ पे, यानी से फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन हो या कोई फिल्म स्टार हो, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो कैसे बोलेगा, वैसे करना है या फिर हमें हमारे बेसिस पे ही करना है? पूरा ओरिजिनल रहेगा? ओपन है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि आप जिस तरह से करना चाहो करो, यू अप्लाई योर ओरिजिनलिटी। मैं अगर ये कहूँगा आप आमिर खान की तरह लो तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप कर सकते हो तो करो, लोग वो भी एंजॉय करेंगे, वो स्किल है। हेलो सर। हाँ बोलो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट हो गया है, तो कैन वी लीव? अभी ये ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। अभी आर डिस्कसिंग द क्वेरीज ओनली, और जिसका क्लास है वो लीव कर सकते हैं।
डेडलाइन मैंने बताई मैं मैसेज डाल कि 5 मिनट वेट कर ले, बट इट्स ओके अगर आप लीव करना चाहते हो तो। ऐसा ऑलमोस्ट मैंने मैम को मैसेज कर दिया मैंने सर। हाँ, मैंने भी इंफॉर्मेशन दे दी है कि बस ओरिएंटेशन। इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या मैंने बताई आपको, ये डेडलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप 21 तारीख को सब सबमिट करोगे, आपको सबमिट पहले कर देना है सब। ये डेडलाइन इनफैक्ट हमारे लिए है कि 21 तारीख को हम सबमिट कर देंगे मार्कशीट वहां पे, एंड साइड बाय साइड इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड योर प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट। जैसे आप अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में आप बोलोगे कि हम इंटरव्यू हमने हमारा रेडी कर दिया है, now we are ready for the presentation, and accordingly we can schedule this presentation part, and for that we can devote some additional time also apart from our regular classes if needed, क्योंकि हमारे हफ्ते में 2 क्लास आते हैं, जरूरत पड़ी तो हम किसी छुट्टी के दिन या किसी और दिन ये ऐसा सेशन हम कर सकते हैं जिसमें 5 लोग प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है तो उसका प्रेजेंटेशन हो जाए। हेलो सर, इनमें से हम कोई भी एक्टिविटी एक रेडी रख सकते हैं ना? जरूरी नहीं है ना कि एक ही दिन पे 5 एक्टिविटी रेडी हो जानी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है, ये ग्रेजुअली होता जाए वो जरूरी है। ओके सर, ताकि आपको भी ये रिलैक्सेशन होता जाए। चलो हमारी 5 से 3 एक्टिविटी हो गई। हाँ, राइट सर, दैट्स राइट। It's a difference because simultaneously you will be loaded with lot many other works of different courses. तो आप जितना ये साथ जाते हो पैर में या इंडिविजुअली, तो आपका उतना बर्डन कम होता जाएगा। फिर लास्ट में सोच लो कि आपका सबका इतने 100 लोग हैं और सबका प्रेजेंटेशन 5 एक्टिविटी है, तो it will be overloaded for we people also and for you also. And it will not be interesting at the time of presentation. या एक ही दिन में 2-4 घंटे में थोड़ा ऐसे डिवोट कर पाएंगे for the presentation purpose only. That is also very quite impossible. So सर एक ये भी क्वेश्चन था, जब हम पैर होंगे तो ये जरूरी रहेगा कि हम लोग जैसे कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं तो वो कॉमर्स स्ट्रीम वालों के साथ ही पैर रखेंगे, हम साइंस वालों के साथ हो सकता है ना? आप अपनी पैर बना के हमें इन्फॉर्म कर दो, अभी ये व्हाट्सएप ग्रुप में डालते जाओ, ये टीचर्स हमारे जो ग्रुप पे है वो नोट डाउन करते जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स और पेयर आइटम्स, एंड अकॉर्डिंगली इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए ना, बिकॉज अभी ही एक्टिविटीज मिली है, टाइम सोचने में भी लगेगा कौन सी एक्टिविटी पैर अप करनी है और कौन सी इंडिविजुअल करनी है। देख, इसमें जितनी पैर वाली एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो पैर में कीजिए, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक। और सर आपने कहा ना व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा। हाँ, तो जैसे आप सोच लिया है कर लिख दीजिए आप। ओके सर, आप 15 दिन के लिए वेट मत करना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। हाँ, नहीं तो आपके पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए कि अब तक हमारी पैर मुझे मिली नहीं, क्या करूं मैं। नहीं तो इसमें बी श्योर दैट किसी का भी 21 तारीख तक नहीं होगा ना तो वी विल पुट 0 मार्क्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं किसी के पास हाथ जोड़ के ये नहीं कहूंगा भी आपका बाकी है दे दो, ये नहीं होगा। फॉर दैट यू शुड टेक इनिशिएटिव एंड यू शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट वीक से हमारा ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट। ओके सर, है ना, जो इंडिविजुअल करनी है इंडिविजुअल का स्टार्ट कर दो, और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जैसे हमने ऐसा प्लान किया है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हमने नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग की सॉन्ग कंपटीशन रखी है मान लो, तो उसमें अगर आप में से जो 5 अच्छा गा सकते हैं, 5 लोगों ने पार्टिसिपेट कर दिया उस एक्टिविटी में, तो आपकी एक एक्टिविटी इसमें कंसिडर हो गई, खत्म हो गई। So such kind of scope is also there, opportunity is also there, that you can take part in some other activities which are quite relevant and appropriate with the work given here. So that will be considered. We will tell you in advance. जैसे मैंने अभी से बोल दिया कि नेशनल ये पैट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन आ रही है कुछ दिनों में, तो इसका पैट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन में आप में से अगर कुछ लोग हिस्सा लेते हैं और स्क्रूटिनी में आपका सॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है एंड यू आर अलाउड टू सिंग, सो
so that will be considered as one of your activity under music and vocal. तो आपका एक काम हो गया उसमें. तो हम simultaneously parallel we will organize such activities also, wherein suppose you are able to participate effectively and you want to consider this as your submission for this practical work, we will consider it. समझ में आ गया ना? तो एक एक्टिविटी का तो मैंने न्योता आपको दे दिया अभी से. So those who are willingly ready to sing a patriotic song in competition. बट हाँ, यहाँ पे स्क्रूटिनी बहुत अच्छी तरह से होने वाली है. इसमें कोई प्ले कर सकते हैं? पेट्रोटिक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर? नहीं, ये पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन में सॉन्ग गाना है. ओके सर. ये इंस्ट्रूमेंट वाला है जो फिर इसमें ये अलग है. हमारे प्रैक्टिकल वर्क में है इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाला. ओके सर. सर ये कंपटीशन में साउंड ट्रैक रहेगा जरूरी? कंपल्सरी. अब कोई गाना ऐसे ही नहीं गाएंगे, कोई साउंड ट्रैक के बिना नहीं गाएंगे. ठीक है. तो मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है. आपको क्लैरिटी आ गई है जो बताना चाहते हो उसकी. दूसरे टीचर्स भी है अनुकूल, और कोई है? रुचि है? हाँ, यस. रुचि, प्रीति, if you want to tell something you can tell, otherwise if it is okay you can wind up here. Let's just wind up क्योंकि मैम का मैसेज आ गया है. ठीक है. ओके ओके. किसी को कुछ भी डाउट हो पर्सनली हम किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हो तुम लोग. ठीक है. या उसमें भी एक मैसेज आप छोड़ोगे ना, ब्रीफ मैसेज, तो वी विल आंसर. देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके सर. ओके, थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. डू योर बेस्ट. ओके सर. दिस इज व्हाई आई एम एंडिंग दिस मीटिंग. चलो तुम लोग मेथड के क्लास में जाओ. चलो, बाय एवरीवन. बाय मैम. बाय मैम. बाय.